एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली क्विज ऑफ द चैनल। सो आज का जो क्विज है वो होने वाला है कोड ऑन वेजेस 2019। तो 2019 में एक नया एक्ट आया था, कोड ऑफ वेजेस। मैं इसके डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि ये क्विज है, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो हमारे आप कोर वीडियो पे जाइए। बेसिक वीडियो जो इस एक्ट पे मैंने बनाया है उस पे आप जाइए, उसको वहाँ पे पढ़ के फिर वापस आइए इस क्विज पे। और जिनको वीडियोस देखे हैं या फिर उनको पहले से पता है तो आइए देखते हैं, कुछ क्विज को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो हियर वी गो। क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following minister introduced the code of wages 2019 in the lower house of the parliament? Options are given. आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं 20 to 30 सेकेंड रुकूंगी, फिर मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, तो आप देख लीजिए। एंड द आंसर इज ए, संतोष गिनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the Code of Wages 2019, an employee wages may be deducted on the certain grounds, including fines, absence from duty, accommodation given by the employer, or recovery of the advance given by the employee, among other. These deductions should not be exceed blank of the employee's total wages. And options are given. द राइट ऑप्शन इज 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए कोई भी डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ वेजेस 2019 इज द वर्ड कंपनी डिफाइंड? एंड ऑप्शंस आर गिवन। The right option is B, means 2E subsection सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन E में डिफाइन किया गया है कि कंपनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन इस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Code of Wages 2019, advisory board means the central advisory board, or as case may be the state advisory board, constituted under which section? Options are given. The right option is C, 42. In the section 42 the advisory board इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 42 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 69 of the Code of Wages 2019 has not repealed which of the following? Options are given. And the right option is A, Employee Provident Fund Act and miscellaneous provision. Next question, the Code of Wages introduced the concept of floor wages, which replaced the concept of stabilization wages, which currently guarantees dash, and the options are given. The right option is 9, 178 per day. तो 178 रुपये पर डे
आपका मिलता था स्टैविएशन वेजेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑन वेजेस 2019 provides penalty for the offence by the employer which vary from the raise dash to dash rupees। तो कितना वैरी करता है एम्प्लॉयर पे अगर उस पर पेनाल्टी लगती है तो? ये आपके ऑप्शन है, आप देख लीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, 10,000 to 1 लाख रुपी होती है पेनाल्टी। किस पे लगती है? एम्प्लॉय पे लगती है अगर कोई भी ऑफेंस उस इस एक्ट के रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट मिलती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Code of Wages 2019 state that the provision related to bonus payment will not apply to the establishment in which dash or more person are employed, and the options are given। and the right option is B, so means 20 or more person are employed, तब उस पर आपकी ये पेमेंट ऑफ बोनस वाली एक्ट नहीं लगेगी, सेक्शन नहीं लगेगा, नॉट द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ एजेस 2019 provides for a central advisory board consisting of employees in the equal number as employer, independent person not exceeding space of the total number, and the 5 representative of state government to be nominated by the central government। तो आपको बताना है आपका जो इंडिपेंडेंट पर्सन है उसका लिमिट क्या है। तो ऑप्शंस आर गिवन। and the right option is 1/3। 1/3 of total member will not exceed as the independent person। So last question but not the least, so the question is, under the constitution of India the laborers come under which list? ये आपका कोड ऑफ एजेस से नहीं है, वह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो द ऑप्शंस प्लीज आप बताइए। So right option is option B, concurrent list। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लेबर एग्जिस्ट करते हैं, मींस लेबर को लेबल किया गया है वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट ये बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रख लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लेबर डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स को लेकर और नए क्विज़ेस को लेकर। प्लीज़ अपने स्कोर्स को नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर कोई और क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगी। आपका क्वेरी को सॉल्व करने में पूरी की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग आप एम।